the so we are going to discuss the strategy for the mains examination of HP Judicial Services. Mains examination, HP Judicial Services. Total marks जो आपके मेंस का पेपर होगा बेटा, that will be for 800 marks. Minimum marks that is required is 40% in each paper. Each paper मतलब ये जो each paper है, this each paper comprises of civil law 1, civil law 2 and criminal law, right? And जो आपका हिंदी का पेपर है, जो आपका लैंग्वेज पेपर है, उसमें आपको 33% मार्क्स जो है that is required. 33% marks in Hindi and total जो aggregate है that is 45%. आपका टारगेट होना चाहिए out of these 800 marks your target should be in order to qualify mains examination 540 plus 540 plus. ठीक है, coming on to जैसे मैंने यहाँ लिखा है 800 नंबर, तो ये आपका जो सिविल लॉ 1 का पेपर है that is going to be for 200 marks. Civil law 1 is 200 marks. Civil law 2 is also 200 marks. Criminal law is your 200 marks again. English is 150 marks. And Hindi is your 100 marks. तो ये टोटल 800 नहीं बन रहा है, ये कितना बन रहा है 850 मार्क्स बन रहा है. Are you understanding? तो ये 850 मार्क्स है बेटा, not 800. So total marks जो हैं this is 850. This is 850. And out of this 850 your target should be to get 540 plus. Your target should be to get 540 से ऊपर आपका जो है स्कोर होना चाहिए. ठीक है मैम. हाँ जी. नाउ कमिंग टू योर सिविल लॉ 1. अब आपका फोकस किस पे होना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो? अभी अब आपके पास हार्डली 10 से 11 दिन है. सिविल लॉ 1 यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस 1 या 2 जजमेंट राइटिंग. ठीक है बेटा? जजमेंट राइटिंग मैम? यस, जजमेंट राइटिंग मैम ये तो अच्छा ठीक है. प्लस WS 1 or 2 you should write the judgment. You never know. ड्राफ्टिंग अभी आपको जो है, अगर आप देखें 2015, 16, 17, 16, ठीक है ना, तब तक आपको जो है ड्राफ्टिंग आती थी. बीच में उन लोगों ने रोक लिया था, दे वर नॉट आस्किंग ड्राफ्टिंग. ठीक है, 19 में अगर आप देखो 2 बारी पेपर कंडक्ट हुआ, दे डिड नॉट आस्क ड्राफ्टिंग. बट अभी फिर से 2023 में उन्होंने दोबारा से जो है दे हैव आस्क्ड टू ड्राफ्ट. 23-24 का जो पेपर था, तो अभी एटलीस्ट यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ टू राइट अ जजमेंट, हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेन एंड हाउ टू ऑल्सो हैव द WS. कैसे आप WS बनाएंगे? ठीक है, प्लेन एंड WS पे बेटा प्रेरणा, I have this video already uploaded on YouTube where you can quickly get pointers कि किस तरीके से प्लेन और किस तरीके से WS आपको फाइल करनी है. ठीक है, किस तरीके से आपको बनानी है. उसके अलावा जो मेंस में आपको क्वेश्चंस आएंगे HP में, इट विल बी प्रॉब्लम बेस्ड and I'm writing and theoretical questions. Theoretical questions. ठीक है, so problem based questions or theoretical questions. So this can be or this is the expected pattern for your civil law 1. This is your expected pattern for civil law 1. Now if I give you a breakup of civil law 2, civil law 2 में you can expect mains problem based questions and theoretical questions.
theoretical questions. अच्छा, एक चीज और है बेटा, हाँ जी क्योंकि मैम। आपको पता है कि टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस के आपको सब पार्ट्स होते हैं ना, तो इन टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे सिविल लॉ 1 में? अगर आप एवरेज निकाल कर चलो तो अराउंड 15 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। 15 क्वेश्चंस, दैट्स द एवरेज। 15 अच्छा, क्वेश्चन, ठीक है मैम। ठीक है। एंड 15 क्वेश्चन इज लीविंग द जजमेंट राइटिंग एंड अदर थिंग्स, ड्राफ्टिंग को छोड़ के 15 क्वेश्चंस। एंड सिविल लॉ 2 में देयर विल बी अराउंड 23 क्वेश्चंस. So in those 180 minutes, you should be prepared to write 15 questions plus the drafting in Civil Law 1. In those 180 minutes, you should be prepared in doing 23 questions in your Civil Law 2. Okay. And coming ठीक। to your criminal law paper, beta. Criminal law में भी आपका सेम वही theoretical and problem based questions. Theoretical and problem based question, but here you have to be very very quick because this is the lengthiest paper of HP and you can expect around 35 questions. You can expect around 35 questions. This is an average. This is ओके an average. Okay, all right. जी। Now if I give you a breakup of subject wise कि आप कितना क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन डू स्मार्ट स्टडी, यू नो। सो सिविल प्रोसीजर कोड से आपको अराउंड 70 to 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एविडेंस यू कैन बी आस्क्ड अराउंड 60 to 70 मार्क्स. दिस इज योर सिविल लॉ 1, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अराउंड 30 मार्क्स. स्टैम्प एक्ट around 16 to 20 marks. And Courts Act around 8 to 10 marks. So for Civil Law 1, spend the maximum time in your Civil Procedure Code, Evidence, Specific Relief Act, and then Stamp Act and Courts Act. Similarly, for your Civil Law 2, beta, आपका जो हिंदू लॉ है उसमें से आप 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Limitation also, so it's a equal weightage for Hindu law and limitation. हम limitation को generally minor law कहते हैं, but I never say limitation is a minor law. मैं हमेशा limitation को major की तरह ही पढ़ाती हूँ, ठीक है बेटा। तो limitation जो है यहाँ से भी आप 40 to 50 मार्क्स के questions expect कर सकते हो, ठीक है। Then your ICA contract around 50 to 60 marks. Then your TPA 20 to 23 marks. And HP Rent Control Act, very important. ये भी हम क्या बोलते हैं कि ये माइनर है, 40 to 50 marks. 40 to 50 marks. ठीक है। Then coming to your criminal law, बेटा, CRPC 50 marks. IPC 50 marks. NI में सिर्फ आपका कौन सा चैप्टर है? 13। चैप्टर 13, यस मैम, 138 के अराउंड के प्रोविजंस। सेक्शन 138 है। Yes, तो यहाँ पे आप जो है you can expect around 20 marks NI. Forest Act 25 marks. All right. Wildlife. So आप देख रहे हैं क्रिमिनल लॉ में सब कुछ इक्वल बटा हुआ है ऑलमोस्ट, 25 marks. Excise Act 30 marks.
Then now we also have POXO, 5 marks, DV, 5 marks, JJ, 5 marks, POSH, also 5 marks. ठीक है, ये वाली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं बेटा, इसकी ऑन द ऐप यू हैव ऑल द डिटेल्ड वीडियो. ठीक है, आप वो 1-1 घंटे की वीडियो है, पूरा सुन लो, साथ साथ में इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर लो. दैट विल बी इनफ फॉर योर मेंस. ठीक है, एंड उसके बाद जो मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी, जो आपका एक न्यूली एडेड मॉड्यूल है, मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसकी जो गाइडलाइंस एंड रूल्स हैं, दिस यू कैन एक्सपेक्ट 10 marks. ठीक है, द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ दिस यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 marks. So this is the, अब हम क्या रियलाइज करते हैं, what is the crux, that in civil law 1 we have कि ठीक है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, CPC एविडेंस मेजर पार्ट जो है इसी तरफ टिल्टेड है. But if you look into your civil law 2 and also into your criminal law, you can't tend to leave any of the subject. It's almost equally distributed. Okay. Then coming to कि मैम पूरा जो पेपर जो है वो कैसे कंप्लीट करें. 180 मिनट है आपके पास, 180 minutes you have. Yes, ma'am. And please remember, 35 questions in criminal law means you have to complete 35. If you're just able to do 34 or 33, you're out of the game. ये अपने माइंड को वैसे कंडीशन करो, ट्रेन करो, दैट यू हैव टू कंप्लीट द होल पेपर. प्लीज इसको डू नॉट फॉरगेट दिस, कंप्लीट द होल पेपर. यू हैव टू फिनिश द होल पेपर. इवन इफ यू आर एबल टू कंप्लीट 4 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से आपने किए, 5वां क्वेश्चन रह गया या 5वां क्वेश्चन का कुछ पार्ट रह गया, you're almost out, out of the game. So यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर 2 marks का क्वेश्चन है तो प्लीज जस्ट 30 to 35 words you have to write बेटा. एंड मिनिमम आप इसके ऊपर 2 marks के क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट ही स्पेंड कर सकते हो. 180 मिनट मतलब 180 मिनट तो बोलने के लिए है ना, वैसे आपको क्वेश्चन पेपर भी तो पढ़ना है. हाँ जी मैम, देखना भी क्वेश्चन तो तो आपके पास, हाँ, तो 150 मिनट ही रह जाएंगे आपके पास लिखने वाले. हाँ जी मैम. ठीक है, तो 2 मिनट. और उसके बाद अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, अगर 5 marks का क्वेश्चन है, इन दैट केस हाउ मेनी वर्ड्स, 60 to 70 words. इसकी भी मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ बेटा, जिसमें आई हैव शेयर्ड द इंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ मेंस एग्जामिनेशन. एंड 5 marks के क्वेश्चन पे आप सिर्फ 4 मिनट स्पेंड कर सकते हो, 4 minutes ऑन ईच क्वेश्चन. ठीक है, if it is a 8 mark question, you can only spend around 6 to 7 minutes, not more than that. And you have to complete this in, almost around 200 words. तो 5 नंबर के लिए अगर 50 से 70 है तो उसी का डबल कर दो ना, 200. 100 वर्ड्स लिख लो आप 5 नंबर के लिए, और 10 नंबर के लिए आप 200 वर्ड्स लिख लेंगे बेटा. तो एवरेज जिसका 200 है, अराउंड 180 to 200 वर्ड्स आप लिख सकते हो फॉर 8 marks क्वेश्चन. आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रेरणा? ठीक है, ऑल राइट. एंड देन 10 marks, 10 marks के लिए आप इसको ले जाओ टू 250. ठीक है, बट द स्पीड हैज टू बी वेरी वेरी क्विक. एंड इसमें आप जो है 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकते. सो अगर आपको बेरेक्ट प्रोवाइड भी करा जा रहा है मेंस में, अवॉइड यूजिंग द बेरेक्ट अंटिल अनलेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना मिनट आप बेरेक्ट पढ़ने में और खोलने में लगाएंगे, आपका टाइम निकलता जा रहा है. मैम डायरेक्ट वो प्रोवाइड करते हैं कि हम लेके जाते हैं अपने साथ? नहीं नहीं, वो प्रोवाइड करते हैं, और वो ऐसे बेरेक्ट्स होते हैं जो आपको उस टाइम खोलने में लगेगा कि कौन से बेरेक्ट है. दे आर नॉट फ्रॉम द यूजुअल बेरेक्ट. ओके, अच्छा. राइट. ठीक है, उसके बाद बेटा जो है आपका मे बी you're asked
12 marks. That's how HP में जो है 5 नंबर 10 नंबर या 12 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं. बट हाँ अभी जी. अगर आप पास्ट ईयर देखेंगे तो एक 25 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा है, बट वो ड्राफ्टिंग और उस एरिया से आया है. ठीक है, तो जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इस पे आप मैक्सिमम 11 मिनट ही स्पेंड करेंगे. 11 मिनट स्पेंड करेंगे एंड यू विल राइट अराउंड योर 350 वर्ड्स. दैट इज इनफ. 350 वर्ड्स, 350 to 360 वर्ड्स आप लिख सकते हो उसमें. Did you take this down? If you haven't, you can take a screenshot. If you haven't, you can take a screenshot. 2 marks, 35 words. So basically time आपके लिए बहुत important है मेंस एग्जामिनेशन में बेटा. आपका माइंडसेट बहुत important है for मेंस एग्जामिनेशन. Be calm and composed. Do not overwhelm. Do not panic. ठीक है? Trust the process and trust yourself and trust your own study material. ठीक है? All right. Is it clear? हाँ जी मैम. Okay, now coming on to अब जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे पढ़ना है. कोर सब्जेक्ट्स मतलब सीपीसी, कोर सब्जेक्ट मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर सब्जेक्ट मतलब सीआरपीसी, जिनका सबसे मैक्सिमम वेटेज है. जो कोर सब्जेक्ट है, सबसे पहली चीज इनके PYQs एटलीस्ट 10 years के. इट्स अ मस्ट. It is a must. जी You मैम. will find all the PYQs there. I'll share the PDFs with you. ठीक है बेटा? All right. Then you also have to have a जैसे जो आपने तैयारी की होगी, जैसे my students will have their class notes, right? So you should have your own notes to revise. क्लास नोट्स को आपको रिवाइज करना है, या जो आपका मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी है उसको आपको जो है यू हैव टू गो थ्रू देम. एंड शॉर्ट नोट्स इन केस यू कैन मेक, प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स. दिस इज इफ. नाउ शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने एक सेक्शन जुडिकाटा पढ़ा, उसमें आपको पता होना चाहिए मेन सेक्शन ये इतनी एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है. ठीक है, ये इसका इंटरलिंकिंग है सेक्शन 12 का साथ, ऑर्डर टू रूल 2 के साथ. ठीक है, तो वो आपको जो है शॉर्ट नोट्स मतलब आपके जो है skeleton notes if you can make, that is also important. And for these 12 days you have to practice answer writing daily. Practice answer writing daily, but for only how many hours? 2 hours. बस, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है ठीक मैम. है, ठीक है. All right. And also you have to, when you are practicing answer writing, it should be time bound. ये नहीं कि एक क्वेश्चन उठाया और उसमें 2 घंटे लगा दिए. Time bound. All right. Now if you look into your local laws बेटा, अब ये तो थे कोर सब्जेक्ट्स ना. ठीक है, अब अगर हम लोकल लॉज की बात करें तो लोकल लॉज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीजें याद रखनी है. एक तो बेयर एक्ट, दैट यू कैंट मिस ऑन, प्लस योर PYQs. ठीक है. जजमेंट राइटिंग के लिए, अगर तो आपने प्रैक्टिस किया है तो ठीक है, अदरवाइज even I can share it with you beta in the app only, judgment writing of HP. I'll share the pattern with you. ठीक है, I'll share a PDF. But otherwise on judgment writing there's this wonderful excellent book by Robinjeet and Arjinder. रॉबिनजीत सिंह की ये बुक है. इट्स अभी अगर आपके पास ये बुक नहीं है, इट्स नॉट द टाइम टू बाय दिस बुक. ठीक है, आई विल शेयर द PDF विद यू. रॉबिनजीत सिंह, ठीक है, एंड अर्जिंदर. तो यहाँ ये वाली जो बुक है, दिस इज एन एक्सीलेंट बुक ऑन जजमेंट राइटिंग. ठीक है, इसमें हर एक स्टेट के आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से यू हैव टू हैव जजमेंट. देन कमिंग ऑन टू योर एसेज, इंग्लिश essay, very very important, you can't miss this.
इसमें आपकी इंग्लिश ऐसे की आपकी एटलीस्ट 1000 वर्ड्स की लिमिट है, ठीक है। मैम अराउंड कितने पेजेस? यू सी कि कितना आप जो है आपकी एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं। 100 मार्क्स का ऐसे है ना ये, सो उसमें एटलीस्ट 1000 वर्ड, 1000 वर्ड्स जो है, दैट इज द वर्ड लिमिट, दैट इज द वर्ड लिमिट। एंड जब आप इंग्लिश एसेज अभी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक तो कोई भी आ सकता है, बट जो एचपी का एक पैटर्न है, सोशल टॉपिक प्लस द लीगल टॉपिक एंड ऑल्सो मे बी सम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। एब्स्ट्रैक्ट समझते हैं? इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो सोशल, लीगल और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, ठीक है। सो इसके लिए आपने PYQs देखो किस तरीके से आपको जो है पहले एसेस पूछे गए हैं। करंट आपका क्या चल रहा है, कोई एनी करंट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इन वो, करंट टॉपिक प्लस रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, PYQs। और कुछ आपके स्टैटिक टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल रिफॉर्म हो गया, राइट, ठीक है। All right, so current topics, static topics, and the PYQs. Okay. And then you have the translation, which is for 50 marks. Translation is for 50 marks, which is from 50 marks की translation है। ये कौन सी है? हिंदी टू इंग्लिश। एंड 30 मार्क्स की ट्रांसलेशन कौन सी है? इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी इज 30 मार्क्स। इंग्लिश टू हिंदी इज 30 मार्क्स, ठीक है। और जो आपका ग्रामर पोर्शन है, जो अभी आपको मैम करवा भी रहे हैं बेटा, जो मुहावरे और जो आप पर्यायवाची शब्द ये सब कर रहे हो, ग्रामर, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। हिंदी ग्रामर, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। सो दिस 20 प्लस 30 50, ये हिंदी, और प्लस 100 मार्क्स का आपका ऐसे, ठीक है, प्लस 100 मार्क्स का आपका ऐसे, ठीक है। सो ऐसे फॉर हिंदी कैन बी अराउंड, ऐसे राइटिंग, हिंदी ऐसे, ठीक है, अराउंड 750 वर्ड्स आर आल्सो सफिशिएंट। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। एंड फॉर हिंदी ग्रामर अभी इस टाइम पे तो मैं आपको नहीं इतना सजेस्ट करूंगी कि आप मटेरियल को हंट करो, बट अदरवाइज अगर आप पैटर्न देखेंगे एचपी का, तो हिंदी ग्रामर मोस्टली आपका जो एचपी लोकल बोर्ड की, एचपी बोर्ड की जो 10th और 12th की बुक्स है ना, वहीं से ही आपको ज्यादातर हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, ठीक है। यस ऑल मैम। राइट,